میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو پروردگار عالم، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلے، مجھ کو وہ علم اسم پڑھا جو مجھے زندہ کر دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے محبوب مجھے، یہ رہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ میں مسافر ہوں، 100 رستے راس آتے ہیں مجھے، میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے۔ میری آواز تیری حمد سے لبریز رہے، میری آواز تیری حمد سے لبریز رہے، بس میں کونین میں جاری میرا نغمہ کر دے۔ جو مجھے مت انٹرپٹ کیا کریں، آج میری آخری سپیچ ہے، آپ پھر مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں جام کے بات کرو، پیسے مت بات کرو۔ کیا گیس بند کر رہے ہیں؟ کون سی غلط بات کی ہے میں نے؟ قائد اعظم کے بعد اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، جو پاکستان کی جان ہے، جو پاکستان کی شان ہے، جو پاکستان کی پہچان ہے۔ آج ہمارا آخری دن ہے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا، سب سے پہلے تو آپ کو بلکہ پورا ہاؤس جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہے، مرزا آفریدی صاحب، چیئرمین صاحب، کہ آج آپ نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے، اور یقینی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کرنے کا۔ اللہ نے آپ کو جس منصب پہ بٹھایا، آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کیا ہے، آپ کو مبارکباد۔ اور آپ نے جس طرح سے ابھی سینیٹر مشاہد حسین سید نے جو بات کی، دیکھیں اعجاز چودھری صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی آ کے اپنے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جن پولیٹیکل پریزنرز کی یہ بات کر رہے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر، ہمارے سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسمبلی میں اسد کیسر صاحب، وہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے اور وہ آ کے پروسیڈنگ اٹینڈ کرتے رہے، پولیٹیکل پریزنرز جو کہ ممبر پارلیمنٹ تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز علائی سپیکر تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کہ بالآخر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، آپ کو اس پہ خراج تحسین۔ آگے بڑھتے ہیں، آج خواتین کا عالمی دن ہے۔ میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی الوداعی سپیچ کی طرف جاؤں گا۔ تو آج کے دن جو ایک قرارداد بھی آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی خواتین اپنے بچوں سے دور ہیں، فلسطین کی بات کی مشتاق صاحب نے، بالکل اس کی بھی ہم تائید کرتے ہیں، اور یہاں سے سینیٹ آف پاکستان آواز اٹھاتا ہے تمام مظلوم خواتین کے لیے، اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ، سنم جاوید، عائشہ علی بھٹہ سمیت جتنی بھی خواتین پرزنرز ہیں، آج خواتین کے عالمی دن کے اوپر پہ ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ یہاں سے دیگر ہمارے جو لوگ ہیں، مظلوم اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں، انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر تمام جو ہمارے لوگ قید ہیں جیلوں میں اس وقت، ان کو رہا کیا جائے۔ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ میسج دیا ہے پاکستانی قوم نے، جو ہے ہی نوجوان آبادی پہ مشتمل، جن میں آپ شامل ہیں۔ نوجوان آبادی ہماری 70% ہے جو 40 سال سے کم عمر ہے۔ یہی ہے پاکستان، یہی ہے پاکستان کا معاشرہ، اسی نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کی ہیں؟ 6 سال ہو گئے اس ہاؤس کو، سینٹ کو، لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا کچھ بھی۔ ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے، یہاں پہ پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے، آئین کی کتابیں کھولی جاتی رہی ہیں، یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل۔ اور میں رضا ربانی صاحب کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ بالکل رضا ربانی صاحب، آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے، پچھلے 2 سال سے یہ کتاب آپ لا نہیں رہے،
पिछले 2 साल से मैंने आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं देखी है। उससे पहले 4 साल लगातार मैंने आपके हाथ में यह किताब देखी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, आपने यह किताब क्यों नहीं खोली? आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, आपने यह किताब इस हाउस में फिर क्यों नहीं खोली? चेयरमैन साहब, आईन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी राय का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आज़ादी, ये आज भी चैलेंजेस हैं। ये आज भी चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया। तो ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, ख़वातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें शामिल करें जो इंसानी हकूक के अंदर आता है। ये सारे जो चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं, ये आज अपनी जगह मौजूद है। हमारे मुआशरे को क्या हो गया है? एक बाप बड़े फख्र से कहता है, वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उधर कम नहीं हो रहा सी, उन्हें 500 रुपए देते हैं, उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है। गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं मुआशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है। फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है। उसका वाकिफ था फलाई जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया। आम ही नहीं, उस पर फख्र भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है। हमने इनको आम किया है, हमने इनको आम किया है। हमें यह जायजा लेना होगा, अपने अपने गिरबान में जम के बात करो, बस के मत बात करो। और हमने जायजा लेना होगा इन सब चीजों का। मुआशरे को ठीक करना है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है, और वो टैलेंटेड है। उनको इस मुल्क की भागदौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान, वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए। मुझे मत इंटरप्ट किया करें। आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात, मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बात। कायदे आज़म के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नोबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फलस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है। थैंक यू। वो लीडर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? प्लीज कर लें, प्लीज मत करें इंटरप्ट। आप मुझे बहुत मेंबर बाकी हैं। फैसल साहब क्या कर रहे हैं? 5 मिनट का टाइम दिया है। 4 मिनट नहीं हुए मेरी बात सुने, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वो लीडर, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है। बात को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड कर रहे हैं? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब। वो लीडर जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, सेल्फ स्टीम को बहाल किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुददारी, सेल्फ स्टीम। मेरी बात सेनेटर फिदा, मेरी बात सुने। सेनेटर फिदा मोहम्मद, सेनेटर फिदा साहब, एक्सपेंस कर दिया जी, मैंने एक्सपेंस कर दिया जी, एक्सपेंस कर दिया जी। सेनेटर फिदा साहब, फैसल साहब प्लीज, फैसल साहब आपका टाइम खत्म हो गया जी। जी आयत सुना दें प्लीज। सेनेटर फौजिया जी प्लीज तशरीफ रखें। मैंने एक्सपेंस कर दिया जी,
एक्सपेंस कर दिया है जी, प्लीज तशरीफ रखें प्लीज जी। फैसल साहब का माइक खोलें, दुआ पढ़ लें प्लीज। कुरान की एक आयत से अपनी बात खत्म कर की। नहीं इमरान खान प्लीज, का नाम लिया क्यों टाइम शॉर्ट है फैसल साहब, टाइम बहुत शॉर्ट क्यों है। करे एक्सपेंस? हाँ जी जी सुनिएगा दुआ कर लें प्लीज। मैं आखिरी कुरान की एक आयत सुना के बात खत्म करता हूँ। देखे बात सुने। इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया। अल्लाह ने इस मुल्क को सब चीजें दी हैं। अल्लाह ने इस मुल्क को दरिया, समंदर, पहाड़, सेरा, कुदरती वसाइल से माला माल है, सारे मौसम है, हसीन वादियां हैं, लेकिन हम इनकी कदर नहीं कर रहे। और नौजवान आबादी, हम इनकी कदर, और इमरान रिक्वेस्ट है खान फैसल जैसा साहब, हीरा दुआ लीडर, कर लें प्लीज। हम कदर नहीं कर रहे। रिक्वेस्ट है प्लीज। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अभी मैं एक बात करता हूं कि टीवी पे खबर देखें, टीवी पे खबर आती है कि जी फलां शख्सियत एक शायर थे, यार क्या हो गया, बात खत्म करो। फलां शख्सियत एक शायर थे, उनको फौत हुए 35 बरस हो गए, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। बड़े अच्छे थे, जिंदा थे तो अच्छे नहीं थे, मर गए 35 साल हो गए, फिर खबर आ रही है जो जिंदा थे वो अच्छे नहीं थे। या फैसला आता है, ठीक है, ठीक फैसला आता है, लेकिन फेयर ट्रायल का क्या हक जो मौजूद है इस वक्त उनको मिल रहा है? ये सवाल है। कुरान की एक आयत है अल्लाह की नेमतों के हवाले से, जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार कर दिया था। कुरान चैप्टर, मैं कुरान की आयत पढ़ो, आप बीच में बोल रहे हैं। फैसल साहब आप आयत पढ़ रहे चैप्टर हैं? नंबर 14 जी आप पढ़ लें आयत प्लीज। चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 7। मुझे एक चीज की है बात, पहले दिन से जब से मैं यहाँ स्पीचेस कर रहा हूँ 6 साल पहले से, और आज आखिरी स्पीच, कोई एक स्पीच नहीं है जिसमें इन लोगों ने मुझे इंटरप्ट ना किया होगा। थैंक यू वेरी मच। कुरान की आयत चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 7, जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार कर दिया था कि अगर तुम शुक्र करोगे तो जरूर मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा भी बड़ी सख्त है। चैप्टर नंबर 54 आयत नंबर 35, हम उन लोगों को उस तरह सिला देते हैं जो शुक्रगुजार रहें। और आयत 26 चैप्टर नंबर 38, लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला किया करो और अपनी ख्वाहिश के पीछे ना चलो कि वो तुम्हें खुदा की राह से भटका दे। भटके हुए की सजा उन्होंने सजा सख्त है कि उन्होंने रोज़े हिसाब को भुला दिया, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे। उससे जी अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहादत मुझसे, ए मेरे वहादतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो परवरदिगार आलम। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले, मुझको वो इल्म इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। जाया होने से बचा ले मेरे महबूब मुझे, ये रहो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ 100 रस्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे, मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे। बस में कोनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। अल्लाह पर ईमान और इंशाअल्लाह मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान की उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो। वहां फूल खुशी के खिलते हो और सारे मौसम मिलते हो, बस रंग नूर बरसते हो और सारे हंसते बसते हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां झूठ का कारोबार ना हो, जहां दहशत का बाजार ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो, मरना भी आजार ना हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। वह खून की होली आम ना हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो। जहां मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहां मुनसिफ से इंसाफ मिले, दिल सब
Thank you, सबसे जी. साफ मिले. हाँ, उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो. Thank you, जहाँ जी. रोटी फैसल जहर साहब, से thank सस्ती you, हो. फैसल साहब. और इंशाल्लाह इस Senator बस्ती के रूए रवा फिदा मोहम्मद. इमरान खान. सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब, देखिए मेरी बात सुने, प्लीज एक मिनट. मैं मौका देता हूँ, मैं सबको मौका देता हूँ. प्लीज मैं मौका देता हूँ, आपको मौका देता हूँ. प्लीज मैंने ये देखें,